मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने दें। ओके, सो जी शांजा, आपका क्या सिनेरियो है? मैम, 52 years old lady who is come in OPD with a complaint of 2 weeks ago with irregular vaginal bleeding and had the endometrial biopsy. The histopathology which is given, the specimen received the content, the fragment of the tissues, large of which measure about 0.5 millimeter. The fragment consists of the endometrial tissues and the mucus mixed with blood. There is generalized glandular hyperplasia with the areas of atypia interspersed with the areas of the well differentiated adenocarcinoma. There are the foci of the squamous metaplasia in some of the glandular structure. Impression is a well differentiated adenocarcinoma. ऑलराइट, ठीक है, गुड। चलो शुरू करें आप स्ट्रक्चर डिस्कशन। Yes, ma'am. Ma'am, first of all, start with the mutual introduction. I will ask regarding the demographic detail of the patient, including the name of patient and education, married since, and occupation, and from how much duration of the menopause. I will also ask duration of the post menopausal bleeding, from how much, either it's the first episode or the recurrent episode. Is the amount of the what was the amount of the bleeding, color of the bleeding, if the bleeding is associated with the clots or with the pain, number of the change of pad per day. I will also ask the bleeding associated with the shortness of breath and palpitation and the tachycardia, and if the bleeding is associated with the lower abdominal pain and the feeling of the mass and the something coming out from the vagina, and is there any problem with passing the urine, and bowel and empty her bowel. I will also ask the age of first menstrual cycle, previous menstrual cycle, any irregularity, acne and the hysterism, any associated postcoital bleeding, vaginal discharge, and the contraception like tubal ligation and the OCP is used, and the what was the last pap smear. I will also ask, is there any bleeding associated, any associated per rectal bleeding, chest pain, dyspnea, right upper quadrant pain, flank pain, and is there any treatment taken for hot flushes and tamoxifen used for the CA breast? Is there any history of the hypertension and the diabetic and the asthma? Is there any family history of the CA colon, CA breast, CA uterus, and the ovary in her family? And what was the parity of my patient, her last child born, if she breastfeed her babies or not. I will also ask the significant past surgical history and any history of the blood transfusion, and is there any allergic to the drug, and any significant drug history. And I will also ask the signpost and ask the smoking history and support at home. In the end, I will also ask the if the bleeding is affect her quality of life, and her sexual act, and what treatment is taken up till now, and any ultrasound or the biopsy is available or not. And then I will go, ma'am, further proceed करें. आप एग्जामिनेशन भी कर लो, फिर एक ही दफा डिस्कस कर लेते हैं। Okay, ma'am. And then I will go toward the examination. After taking the consent from the patient, I will take the BMI. After calculating the height and weight and general look of my patient and check the vitals, and and then the Pellarnus to rule out the anemia, do the thyroid examination and the chest auscultation to check the any added sound, and do the breath examination. And then I will go toward the foot end of my patient, and proper exposure. I will ask I will check the breathing pattern of my patient, and I will ask the patient to cough to check the any earlier hernia orifices. And after taking with the permission from the patient to rule out the any tenderness, I will palpate the abdomen, superficial palpation and the deep palpation to localize the any tenderness and any feeling of the mass. If the mass is present, I will check the size of mass, site of mass, number of the masses, any
mobility of the mass, surface margin, or the load limit is reachable or not. And I will also do the percussion note. If this is dull, then I will go toward the shifting dullness. After this, I will auscultation, and after this, I will check the lymph node palpable or not, and the pedal edema. And I will go toward the per speculum examination. I will check the pad is applied, stand or not. And on the per speculum examination, after taking consent, I will pass the per speculum and check the health of the vagina and the vulva, and the cervical health of the cervix, and check the bleeding, and also check the vaginal discharge. And after the per speculum examination, I will go toward the bimanual examination. I will check the site of the uterus, size of the uterus, any position of the uterus, and the adnexal tenderness, and then I will go towards the investigation. गुड सो गुड, यू आर फाइन, इतना बुरा नहीं था, ठीक था, अच्छा था। तो बस वो थोड़ी सी यही बात कि आप हर चीज में, जैसे मैंने आपसे कहा कि बल्कि मैं आपकी एक क्लास ले लूंगी डीडी पे, और जिसके अंदर हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन क्विकली कवर कर लेंगे, और एक अलग क्लास होगी इन्वेस्टिगेशंस पे। इस तरह का पेशेंट, खैर इसके अंदर तो डायग्नोसिस उन्होंने दिया हुआ है, बिकॉज शी इज हियर विद द रिपोर्ट ऑफ एंडोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा। लेकिन फिर भी देयर इज अ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट व्हिच इज इरेगुलर vaginal bleeding, either you call it irregular vaginal bleeding or you call it post menopausal bleeding। पेशेंट 52 ईयर्स ऑफ एज है। दो चीजें आपने हिस्ट्री के शुरू में ही रूल आउट करनी है। एक तो ये कि पहले उसका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या था और अब क्या चेंज आया हुआ लग रहा है उसको। सेकेंडली ये कि क्या उसे बीच में मेनोपॉज हुआ है या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो पहले तो उस मेनोपॉज की हिस्ट्री लो ना, कि कब हुआ, 1 साल तक पीरियड्स नहीं हुए, फिर मेनोपॉजल सिम्टम्स उसको क्या क्या है, और उसके बाद अब ब्लीडिंग स्पॉटिंग पैटर्न किस तरीके से शुरू हुआ, और व्हाट मेड हर गेट हर अल्ट्रासाउंड डन एंड द बायोप्सी डन। तो ये सारी चीजें आप सबसे पहले रूल आउट करोगे। उसके बाद आपने, बिकॉज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग ऑफ कोर्स इज अ सेपरेट सिम्टम, उसके उससे नेक्स्ट में फिर आप मेनोपॉजल ब्लीडिंग के बाद आप ब्लीडिंग पैटर्न, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा वो सारा पूछा कि नंबर ऑफ पैड्स और कोई क्लॉट्स होते हैं नहीं होते, और वो सारा, और एनी एसोसिएटेड पेन, और वो सब आप पूछोगे। उसके बाद व्हेन द डायग्नोसिस इज गिवन इन द सिनेरियो व्हिच इज एडिनोकार्सिनोमा, तो उसमें दो चीजें आपने रूल आउट करनी है अपनी हिस्ट्री में। एक तो ये कि वो हुआ क्यों उसको, यानी सारे रिस्क फैक्टर्स पर, फिर वो आप एक 1 2 3 करके एक ही जगह पे कंसाइज तरीके से रिस्क फैक्टर्स पूछोगे, विच विल स्टार्ट डेफिनेटली विद द इंक्रीज बीएमआई और वेट गेन, एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीसीओ, इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री, और साथ में ऑफ कोर्स फैमिली हिस्ट्री, देन डायबिटीज इटसेल्फ, यानी ओबेसिटी, डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सी एंडोमेट्रियो, ये सारा कुछ, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी आपने पूछा है, जिसमें स्मोकिंग, जिसमें कैफीन इंटेक आ जाता है, तो वो सारा कुछ भी ठीक है। और बट एज वी नो इट्स, दिस इज अ केस ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम। तो चलो फिर हम इसके अंदर सर्वाइकल कैंसर, तो इसमें सर्विक्स की बहुत सारी कॉजेज नहीं पूछेंगे, लेकिन अदरवाइज अगर ये सिर्फ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग भी होता, या फिर ये रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता, तो फिर हमारे जहन में सर्विक्स का डीडी भी रह जाता। तो ये सारा कुछ आपने जरूर सबसे पहले पूछना, जिसमें आपने कॉजेज को या रिस्क फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को रूल आउट करना है। उसके बाद आप उसका, नाउ एज द डायग्नोसिस इज गिवन इन द रिपोर्ट, तो फिर आप डेफिनेटली उसका स्टेज का भी पूछने की कोशिश करोगे कि स्प्रेड ऑफ द डिजीज के पर्टिकुलर सिम्टम्स, कोई बॉडी एक्स, बोन पेन्स, कोई चेस्ट सिम्टम्स, या वो सारा कुछ। इस तरीके से आपकी एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरी हिस्ट्री जाएगी। यानी कि पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, पहले तो ये डिफाइन करो कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है क्या, इट्स इट पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग और इट्स द इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग। क्योंकि 52 पे व्हाट आई एक्सपेक्ट, और व्हाट एनी एग्जामिनर और एनीबडी हु इज लिसनिंग टू यू विल एक्सपेक्ट, कि आप पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग को का जिक्र करोगे, शी इज 52, राइट। तो उसमें अगर इफ दिस इज पोस्ट मेनोपॉजल, तो फिर ऑब्वियसली मेनोपॉजल सिम्टम्स भी आएंगे, और फिर उसके साथ ही आप हार्मोनल इनटेक की हिस्ट्री भी ले लोगे। क्या पता कि उसने मेनोपॉज में कोई एचआरटी ले लियो, या कुछ ऐसा ले लिया हो जो कि इरेगुलरली ले लियो, जिसकी वजह से हो, या मतलब एनीथिंग लाइक दैट। तो आप
सबसे पहले तो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को मजीद इलैबोरेट करो कि एग्जैक्टली है क्या। और अगर ये ब्लीडिंग या ऐसा कुछ है तो फिर सेकंड नंबर पे ये वही वाला, जैसे शानजे ने हमें पूरा पैटर्न बताया कि किस तरह की ब्लीडिंग है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग। और उसके बाद आपने उसकी कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, पॉसिबल स्टेजिंग और इफेक्ट ऑफ दिस डिजीज ऑन द पेशेंट, यानी कि अगर वो ब्लीडिंग की पेशेंट है तो उससे कोई इसको अनीमिया डेवलप हो रहा है, उस ब्लीडिंग की वजह से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या कोई चीज, तो उसका इम्पैक्ट लाइफ के ऊपर क्या आ रहा है। तो ये आपने इस पैटर्न पे इसकी हिस्ट्री लेनी होगी। आई थिंक पॉइंट्स आपने कवर किए थे, बट उसका पैटर्न इतना मजे का नहीं था, थोड़ा सा हैपेजर्ड था। आप थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक करोगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, स्पेशली अगर आप रिस्क फैक्टर्स, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, वो सारी चीजें एक साथ करोगे तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और एग्जामिनेशन मुझे आपका अच्छा लगा, आई थिंक एग्जामिनेशन वाज फाइन, वो आपने ठीक किया। आई डोंट नो यू टॉक अबाउट द लिम्फ नोड्स और नॉट, बट अदर देन दैट यस आई थिंक वो ठीक था। और बार बार मैं हर अपनी क्लास में कहती हूँ कि स्पेशली जो मेडिकल टर्म्स है ना, उसके अंदर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। देयर इज नथिंग लाइक पेलार और पेलारनेस और समथिंग लाइक दैट, वी कॉल इट पेलर। पेल होता है या पेलर होता है। तो इसी तरह मीनार की होता है, मीनार और ऐसी कोई नए नए वर्ड्स नहीं, मीनार की। तो अपनी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन को भी ठीक रखना है, स्पेशली जो मेडिकल टर्म्स हैं, ठीक है। और बाकी आई थिंक मुझे तो आपका एग्जामिनेशन ठीक लगा था। किसी ने कुछ और ऐड करना है तो बता दें। ठीक है, सो गुड। इन्वेस्टिगेशंस आप बताओ क्या मांगोगे। मैम मुझे हिसाब चाहिए कि जी, शफक ने मैम कुछ लिम्फ कहना नोड जी। मैम लिम्फ तानिया, नोड की एग्जामिनेशन अगर करेंगे तो इंग्वानल एरिया पर या फिर सारे लिम्फ नोड्स देख लें। नहीं देखो सारों में आप क्या, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में आप एक्सिलरी तो वहीं से साथ ही देख रहे होते हो, वो भी कोई इतना सिग्निफिकेंट चीज नहीं है इसके अंदर। बट पेल्विक लिम्फ नोड्स में हम इंग्वाइनल के अलावा और कोई देख नहीं सकते। मैम ये पूछना था, अगर पेशेंट की कंप्लेंट पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है और पेशेंट सपोज 52 इयर्स ओल्ड है, तो पहले हम पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को एलाबरेट करेंगे या पहले उसकी साइकिल को पूछेंगे? क्योंकि जो है ना वो कुछ एग्जामिनर इस चीज को डाउट मतलब माइंड करते हैं कि आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो हाँ एक्यूट कंप्लेंट है उसको छोड़ दिया और आप पीछे चले गए उसको, देखो, मतलब फिर हम ट्रैक से हट मैं जाते हैं बताती उसमें। हूँ। अगर आपका पेशेंट मेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है तो फिर आप पहले मेनोपॉज का पूछोगे कि मेनोपॉज कब हुआ। फॉर एग्जाम्पल इसको 50 साल की उम्र में हुआ, 2 साल या 1 साल पूरा पीरियड्स नहीं है, एंड इट वाज मेनोपॉज एंड नाउ शी इज हियर विद द ब्लीडिंग फॉर 1 मंथ और सो, इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग। तो आप पहले मेनोपॉज और आपकी ब्लीडिंग को इलेबोरेट कर लो। फिर ऑब्वियसली आपकी ब्लीडिंग को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल से तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट इज 45 और इज इन 40s और इसको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ही रेगुलर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो फिर इट्स बेटर कि आप पहले नॉर्मल पैटर्न पूछो। फिर आप जो एबनॉर्मल पैटर्न है उससे कंपेयर करके उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को इलेबोरेट करो। राइट। और मैम स्ट्रक्चर डिस्कशन में हम पेशेंट से पीसीओएस का डायरेक्ट पीसीओएस पूछ लें, या फिर हम, क्योंकि वो स्ट्रक्चर डिस्कशन है, या फिर उससे नहीं, यही पूछेंगे उसमें कि आप प्रीवियस। यूं ही कहोगे कि प्रीवियस इरेगुलर या इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स होती थी और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ या कुछ ऐसा था, या कुछ सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री उसके साथ थी या नहीं थी। इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स की हिस्ट्री पूछोगे, ओके मैम। क्योंकि पीसीओ तो हर एक मैडम अल्ट्रासाउंड पे आजकल मीनोपॉज लिखा होता है पेशेंट ना। के अंदर हम्म। मैडम मीनोपॉजल पेशेंट के अंदर उसकी जो मीनोपॉज से पहले वाली साइकिल की हिस्ट्री है वो सारी लेना जरूरी है। नहीं, मेनोपॉज के अंदर आपने पहले मेनोपॉज का पूछना, फिर कंफर्म कर लिया मेनोपॉज 1 साल तक नहीं हुआ था और अब महीने से है, तो आप पहले मेनोपॉज को डिटेल में पूछो। उसके बाद आपको एलैबोरेट करो, उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो कि प्रीवियसली उसका साइकिल, क्या पता पहले भी ना उसको साल साल पीरियड्स ना आते हो। मैडम आपकी आवाज ही कट गई। हम्म। क्या कहा? मैंने कहा कि मेनोपॉज पेशेंट के अंदर पहले मेनोपॉज की हिस्ट्री और फिर आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को एलैबोरेट करोगे। उसके अंदर बहुत ज्यादा हाँ। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की उस तरह से सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन आप पूछोगे हम्म। जरूर, क्योंकि यू नेवर नो कि पहले भी कि उसको 6 6 महीने या साल साल पीरियड्स ना आते हो, तो क्विकली आप एक शॉर्ट सा पूछ लोगे कि प्रीवियसली साइकिल कैसे था। अच्छा, और मैडम दूसरा ये कि एचआरटी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो 5 साल के बाद ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो अब 5 साल तक तो मतलब जरूरी नहीं है ना, उसको तो सिम्टम भी खत्म हो गए होंगे अब तक तो मीनोपॉज के। लेकिन एचआरटी, एक तो ये कि ऑब्वियसली अगर ईस्ट्रोजन ओनली है
और उसमें विड्रॉल ब्लीड नहीं हो रहा तो भी कार्सिनोमा के चांसेस ज्यादा है। सेकेंडली, एचआरटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ओरल फॉर्म में भी हो सकती है, विजाइनल क्रीम की फॉर्म में भी हो सकती है। दूसरी चीज ये कि क्या पता वो एचआरटी ले रही है और इरेगुलरली ले रही है, तो फिर तो इरेगुलर ब्लीडिंग होगी ना। एचआरटी की तो बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैडम अगर 5 साल के बाद आ रही है मीनोपॉज के फिर भी है? 5 साल के बाद मेनोपॉज के इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ आ रही है, हाँ जी जी। तो जाहिर है एचआरटी से फिर भी ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा। और ठीक। एचआरटी अगर गलत तरीके से ली जाए तो बस ये भी कर सकता है, अगर विड्रॉल नहीं हो रहा। ठीक है मैम। ठीक है ना। चलो, और क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं इवन जो विजाइनल क्रीम्स वगैरह भी अगर आप दो, तो वो भी आप एक लिमिटेड हद तक देते हो, वरना वो बिकॉज दे आर ओनली ईस्ट्रोजन कंटेनिंग, और उसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ जाती है। ठीक है। सो गुड। सो इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाते हैं। अच्छा, किसी और ने कुछ और एग्जामिनेशन में या किसी चीज में कुछ और ऐड करना तो बता दे। चलो जी, शान से एग्जामिन इन्वेस्टिगेशंस बताएं। मैम 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 ये जो इन्होंने कहा कि फ्लूइड थ्रिल हम्म। देखेंगे, शिफ्टिंग डलनेस, तो ये करेंगे या नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि इस पेशेंट के अंदर तो मैं अनम्यूट हुई नहीं हूँ ना। हेलो, अब आवाज आ रही है? जी। जी जी मैम। हेलो। मैडम आ रही है अच्छा, आवाज। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस पेशेंट के अंदर तो बिकॉज सीए का डायग्नोसिस दिया हुआ है, तो देर इज नो हार्म कि आप कर लो। वैसे भी हर एक में आप एक दफा परकशन नोट कर लो अगर फ्लूइड, क्योंकि यू नेवर नो आपको पीवी पे कोई मैस मिल जाए, तो यू कैन नेवर गो बैक टू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इसमें तो वैसे ही बनता था क्योंकि सीए का डायग्नोसिस दिया हुआ था, तो इजराइल स्प्रेड ऑफ द डिजीज के लिए फ्लूइड, इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड को देखना ज्यादा जरूरी था। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल सीए का नहीं भी डायग्नोसिस, तो भी आप पेल परकशन नोट करते हो, और अगर वो उसमें कहीं आपको डलनेस मिल रही है तो फिर आप उसको उल्टा करवट दिला के फिर आप उसकी शिफ्टिंग डलनेस चेक कर लेते हो। लेकिन इसमें तो खैर वैसे ही सीने का दिया हुआ है, और हर एक में चेक करने का मकसद इसलिए कि व्हाट इफ के पीवी करते हुए बाय मैनुअल पे आपको मैस मिल जाए, और उस मैस में आप जो हो ना कर सको उसे पता, मतलब आप यू कैन नेवर गो बैक टू द एब्डोमेन टू रीचेक फॉर द फ्लूइड इन द एब्डोमेन। ठीक है। सो हमारे गायनी में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का के 3 स्टेप्स है: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन एंड परकशन। वी डोंट डू ऑस्कल्टेशन ऑफ कोर्स। हमारे इसके अंदर जो है क्या उसे कहते हैं, ऑस्कल्टेशन की क्या जरूरत, लेकिन इंस्पेक्शन में वही सारी इंस्पेक्शन जिस तरह से शानजा ने की थी। पैल्पेशन में आपने पहले सुपरफिशियल टेंडरनेस, डीप टेंडरनेस, फिर उसके अलावा विस्ट्रोमेगैली देख लेनी है। विस्ट्रोमेगैली के बाद आप उसका पैल्पेट करते हो, इफ यू फाइंड एनी मास और एनीथिंग एल्स इन द इनसाइड द एब्डोमेन ऑन डीप पैल्पेशन, फिर आप उसको मजीद एलैबोरेट करते हो। उसके बाद परकशन आ जाती है। परकशन के अंदर आप उसको परकस करते करते अम्लाइकस तक लाते हो और फिर फ्लैंक्स तक लाते हो। अगर फ्लैंक्स में डलनेस आए तो यू लुक फॉर शिफ्टिंग डलनेस, एंड इफ शिफ्टिंग डलनेस इज पॉजिटिव देन यू कैन चेक फॉर द फ्लूइड थ्रिल। or if shifting dullness is absent then you don't go for the fluid thrill. And ये आपने हर पेशेंट में इसलिए करना है क्योंकि after this when we go for the pelvic examination and when we are doing the bimanual examination, if we find any mass in the bimanual examination, because mass का मतलब तो ये है कि फिर उसके साथ आपको सॉरी एब्डोमेन में फ्लूइड मिल सकता है, तो इस वजह से आप फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि फिर बायमैनुअल कर लिया तो मैस फील हो गया, फॉर्निसेस में फुलनेस है, और यू आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर मे बी फ्लूइड इनसाइड द एब्डोमेन, तो आप उसके बाद जा रहे हो एब्डोमेन के ऊपर राइट परकशन करने। तो ये नहीं है, हर एक में आपने इंस्पेक्शन, पैल्पेशन और परकशन करनी है। ठीक है। गायनी में समझ आ गई? जी मैडम ठीक। ठीक है, गुड। सो यस शानजा, अब आप इन्वेस्टिगेशंस पूछे। Ma'am, in investigation, baseline investigation included the complete blood count by date, which included the hemoglobin level, TLC count, and the platelet count. And her complete urine examination, her blood group, चलो मैं hepatitis आपको B साथ साथ circulated, and देती हूँ, सॉरी। एच बी आप इसकी yes, कर ma'am. लो 9, बाकी
TLC प्लेटलेट्स ठीक है, यूरिन के अंदर इसका यूरिन इज ऑल राइट, मैम MCV, MCH and MCHC. माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, Okay, ma'am. And the hepatitis B surface antigen, anti-HCV and the HIV. एंटी HCV पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। Okay. And then her abdominopelvic ultrasound to see the size of the uterus, endometrial thickness, regularity of the endometrial, myometrial texture, and adenosine pathology. चलो विल डिस्कस अबाउट अल्ट्रासाउंड। एक बार फिर से पूछो, कैसे अल्ट्रासाउंड पूछा आपने? Ma'am, in abdominopelvic ultrasound, I would like to know about the her endometrial thickness, size of the uterus, endometrial regularity, myometrial texture, and the adenosine pathology if available. चलो बात करते हैं, और आगे और क्या मांगोगे? Her renal function test, LFTs, and the MRI, and chest X-ray and the ECG, and then MRI. ठीक है, अच्छा। सो एब्डोमिनो पेल्विक अल्ट्रासाउंड आपने कहा था, लेकिन डिटेल सिर्फ पेल्विस की मांगी। क्योंकि मैम अब हम मतलब ये तो वेल डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा है, तो इसमें हमें नहीं लग रहा था कि विस्रोमिगाली तक जाएगा, तो उसमें सिर्फ हमने सिर्फ एब्डोमिनल स्कैन नॉर्मली बोला ना, मतलब उसमें वही मांगा। नहीं, या तो फिर एब्डोमिनल पूरा बोलो कि एब्डोमेन एंड पेल्विस आपने कहा, तो फिर एब्डोमेन में आपने क्या क्या देखना है पूछो। मैम एब्डोमिन में एडेनिकल पैथोलॉजी वो तो एंड पेल्विक स्कैन है। वो तो पेल्विस में मैम एनी विस्रोमिगाली एंड द असाइटिक फ्लूइड। विस्ट्रोमेगाली एंड फ्लूइड, अच्छा। नहीं, देखो बात ये है कि पता है, अगर आप लोगों ने भी अल्ट्रासाउंड में किसी ने रोटेशन किया तो दे नो बेटर कि व्हेन यू आर डूइंग एब्डोमेन एंड पेल्विक स्कैन तो कितना टाइम लगता है और कितनी एफर्ट लगती है, स्पेशली पेशेंट की भी कितनी एफर्ट लगती है। कभी इधर करवट दिलाते हैं एक साइड की किडनी देखने के लिए, फिर इधर करवट दिलाते हैं दूसरी साइड की किडनी देखने के लिए, फिर लिवर किस तरह देखा जाता है, स्प्लीन देखा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप क्यों करा रहे हो? अभी आप देखो अल्ट्रासाउंड के ऊपर, या तो आप कहोगे मुझे स्टेजिंग करनी है, तो क्या पता कुछ मुझे, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे भी स्टेजिंग नहीं होती है। हमने एब्डोमेन में स्कैन नहीं मांगना, हमने यूट्रस का, हमने पेल्विक स्कैन मांगना है। पेल्विस में क्या स्कैन मांगना है? आपने ठीक मांगा, इट वाज नॉट बैड, लेकिन और बेहतर होता अगर आप इसको और इलेबोरेटेड तरीके से, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, लेक्चर्स भी काफी सारे हैं कि पेल्विक स्कैन किस तरह मांगना है। क्या आपने साइज ऑफ यूट्रस, एंटीवर्टेड, रिट्रोवर्टेड, एंडोमेट्रियल थिकनेस, रेगुलरिटी, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स एंडोमेट्रियम, वो मांगना है, और एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल एको टेक्सचर, और उसके बाद एडिनेक्सल पैथोलॉजी, और एनी फ्लूइड इन द पेल्विस। अरे अगर पेल्विस में ही फ्लूइड नहीं है तो फिर एब्डोमेन में भी नहीं होगा ना। सो आपने इस तरीके से मांगना है, और उसके बाद आप जो हो, फिर आप बिकॉज यू हैव द रिपोर्ट ऑफ CA इस पेशेंट में, तो यस MRI, फिर आप MRI में आपको बताओगे कि MRI किधर का चाहिए। सो यू वांट टू डू द स्टेजिंग, राइट? एब्डोमेन और पेल्विस का MRI आप लोगे टू डू द स्टेजिंग। तो बाकी ठीक है। अरे RFTs, LFTs आपने कराए स्प्रेड ऑफ द डिजीज देखने के लिए, अदरवाइज तो ये कोई डायबिटिक है वो तो नहीं है ना कि आप RFTs LFTs करा रहे हो। और आपने कराया एक्सरे और ECG, पता नहीं क्यों कराया है, एनेस्थीसिया के लिए शायद। यस मैम, फॉर एनेस्थीसिया फिटनेस, और मैम अलाइजा पे इसका हेपेटाइटिस C लेवल भी हमें चाहिए होगा इसके लिए ना। तो आपने, ठीक है, सो आपने हेपेटाइटिस C के लिए क्वांटिटेटिव कराया, और साथ आपने क्या कराया, LFTs तो कराई नहीं है, विच इज ओके, लिवर ठीक है। फंक्शन और टेस्ट करवाए मैम। वो करा लिए, और किसी ने कुछ ऐड करना है? जब भी HP कम दी जाए उसमें आप अपना पूरा वर्कअप कराओ। आपने एग्जाम में मैम जरूर पैपिस, एटलीस्ट बोलना है। मैम सीरम लास्ट पैपिस फेरेटिन, में। TIBC। सीरम फेरिटिन। यस मैम, ठीक है, सीरम तो जब फेरेटिन। HP कम दे दी जाए तो उसे आपको लिफ्ट करानी पड़ेगी। तो मैंने माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक दे दिया है, तो चलो उसमें यह है कि आपको MCV, MCHC सब कुछ कम है, और वैसे भी इसका अंदर मतलब शी नोज इफ शी इज नॉट थैलेसीमिक, तो वो तो नहीं जरूरत, लेकिन एटलीस्ट सीरम फेरेटिन और इवन TIBC भी बोल दो, मैडम वो इन्होंने भी करा लो बायोप्सी तो तो बेहतर है। करवाई नहीं है, पेशेंट की बायोप्सी हो बायोप्सी गई के है। साथ आई है पेशेंट। अच्छा बायोप्सी अच्छा डायग्नोसिस में थी ना, अच्छा अच्छा सिनेरियो में बायोप्सी थी।
ठीक सो है। वो और पैप स्मेयर की रिपोर्ट भी साथ मांग लो, ठीक है? और कुछ? ठीक है मैम। मैम ठीक है, पैप तो स्मीयर की सो रिपोर्ट अगर 60 इयर्स की पेशेंट भी आ रही है तो भी उसमें हम पैप स्मीयर की रिपोर्ट ऑफ मांगेंगे। कोर्स आप करोगे भी, क्योंकि उसमें नहीं करते जिसके अंदर पिछला रिकॉर्ड नॉर्मल अवेलेबल हो। ऐसे ही है ना, जिसका कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं तो पहला ही हो रहा है तो फिर तो मांगोगे ना। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। गुड। और सो मैम एब्डोमिनो पेल्विक एमआरआई में हमें सिर्फ एमआरआई फॉर एब्डोमिनो पेल्विक एमआरआई फॉर स्टेजिंग के बस लिए बोलना है एब्डोमेन या एंड पेल्विस, स्पेसिफिक वर्ड, या हमें ये नहीं बताना है बस कि आप उसमें एब्डोमेन एंड पेल्विस। देखो बात ये है कि आप जो भी टेस्ट मांग रहे हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हो, आपको एग्जैक्टली जहन में पता हो कि आप किस चीज के लिए मांग रहे हो। तो अगर आपने स्टेजिंग बोला स्टेजिंग बोल दो, नहीं भी बोलना तो खाली हमारा एब्डोमेन एंड पेल्विस मांग लो। तो उसमें तो फिर स्टेजिंग स्टेजिंग एक बड़ा एलैबोरेटेड सा वर्ड है ना, उसका मतलब ऑफ कोर्स ये है कि मायोमेट्रियल इन्वेजन भी उसमें पता चलेगी, उसके अंदर स्प्रेड ऑफ द डिजीज का भी पता चलेगा। तो इस वजह से ठीक है। सो गुड। चलो, अब और किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन ऐड करनी है तो बता दें। LFTs RFTs तो नहीं किसी मांगनी? ने कहा पीटीए पीटीटी आईएनआर, पीटीए पीटीटी आईएनआर आप तब मांगोगे अगर एलएफटीज डिरेज्ड आएंगे। तो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव के अंदर अगर एलएफटीज नॉर्मल है तो फिर पीटीए पीटीटी नहीं मांगना जी। LFTs RFTs ही कह रही थी मैडम। हाँ वो कह दी उसने। ठीक है, गुड। सो जी कहाँ गई शानजे? हाँ शानजे, यस मैम। आप मैनेज करो, हाउ विल यू मैनेज हर? Ma'am, first of all, I will counsel the patient, sympathetically approach the patient and counsel the patient. She is the diagnosed case of the CA endometrium and she need the surgery and the admission. So for this, I will involve the multidisciplinary team. My first aim to stabilize the general condition of my patient and to optimize their hemoglobin. My target hemoglobin is 10 to 11 gram per deciliter. So before this, I will counsel the patient for regarding the blood transfusion and risk of the blood transfusion. I will arrange the 2 pint of PCV and transfuse 1 pint before the surgery and 2 pint for in hand for during the surgery. And I will counsel. I will take the period of anesthesia fitness and take the consent and counsel for regard risk related to the surgery and complication of the surgery ठीक and है, the route of the अभी जरा surgery. यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ। देखो ठीक है, लेकिन वही बात है कि जब तक एक्स्ट्रा ये वो टॉपिक्स है या ये वो सिनेरियोज हैं जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है, मैं हर क्लास में कहती हूँ। वहां पे देखो एक नंबर वन है, एक तो एग्जामिनर चाहे जितना भी कह लें आपको आसानी से पास करने नहीं बैठेगा। उसकी वजह ये है कि दे ऑल्सो नो कि अगर आप पास हो रहे हो तो आप एक उस लेवल पे हो कि इवन द रेफर्ड केसेस विल बी कमिंग टू यू, यू शुड बी केपेबल इनफ टू डील विद देम। नंबर वन। नंबर टू ये कि आप आपके अंदर कोई कसर ना हो कि कहीं किसी पेशेंट की मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, ठीक है? इसलिए वो इतने आसानी से उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस भी देखना है, आपकी डिसीजन मेकिंग भी देखनी है, आपकी यू नो हाउ आपकी नॉलेज, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही तब आएगा जब आपके अंदर नॉलेज है, राइट? व्हेन यू नो दैट यू आर राइट देन यू विल बी कॉन्फिडेंट, आपको तब पता होगा और आप तब ज्यादा कॉन्फिडेंटली भी जवाब दोगे। अगर वो कोई आपको कंफ्यूज भी करने की कोशिश करेगा एंड यू नो दैट यू आर राइट, तो ऑब्वियसली फिर डिसीजन मेकिंग का तो क्या है, और कॉन्फिडेंस भी, तो वो सारा कुछ वहां पे ऑब्जर्व हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि आपसे पहले काफी सारे कैंडिडेट्स गुजर चुके होते हैं या आपके बाद आ रहे होते हैं। एक तरह से अब चाहे एग्जामिनर ना भी चाहे तो भी कंपैरिजन हो जाता है। अगर आपसे पहले वाला एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर गया और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को 62 नंबर मिले हैं एंड यू आर परफॉर्मिंग एवरेज और लिटिल बिलो एवरेज, तो यू कैन नॉट पास द स्टेशन, राइट? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को भी 65 ही मैक्सिमम मिलने हैं, या चलो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को 70 प्लस मिल जाएंगे। तो तैयारी आपने, ये वो स्टेशन हैं जो हर एक को पता आना है। पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये वो चीजें जो आनी है एग्जाम में, हर एक को पता है। मोर देन 90% इसमें 70% की तैयारी करके जाएंगे। तो आपने अब देखो, अब मैनेजिंग दिस पेशेंट इज सो इम्पोर्टेंट, और इसी वजह से चाहे हमें लगे या किसी को भी लगे कि ये तो छोटी बात है, लेकिन एग्जामिनर के लिए वाकई बड़ी बात है। सबसे पहली चीज ये कि बिफोर यू स्टार्ट द मैनेजमेंट इन दिस पेशेंट यू हैव टू कंप्लीट योर इन्वेस्टिगेशंस। आपकी इन्वेस्टिगेशंस तो अभी पूरी नहीं हुई। I have not given you the MRI report. I think I have not given you the ultrasound report.
एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स ओके, अगर जितनी इंपॉर्टेंट हो, चलो एलएफटीज मैंने कह दिया नॉर्मल है या वो सारा कुछ। तो आपको सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द मैनेजमेंट यू हैव टू से कि आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई इन्वेस्टिगेशन। वो कहेंगे व्हाट इन्वेस्टिगेशन डू यू वांट, उस पे आप बता दोगे कि मुझे ये चाहिए। कुछ वो बता देंगे, कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कि बताएं या ना बताएं, आपके पास तो बायोप्सी की रिपोर्ट है, राइट, यू नो द डायग्नोसिस। सो फाइन, दे विल टेल यू कि चलो अल्ट्रासाउंड पे एंडोमेट्रियल थिकनेस इसकी 15 मिलीमीटर आई हुई है फॉर एग्जाम्पल, इतनी ज्यादा, और ये सारा कुछ इन्वेडिंग अब प्री ऑपरेटिवली बिफोर इवन ब्रेकिंग एनी न्यूज टू द पेशेंट, और बिफोर यू आर डिसाइडिंग और यू गोइंग फॉर द सर्जरी और यू आर टेकिंग पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर, आपको खुद उसकी एक क्लिनिकल स्टेजिंग पता होनी चाहिए, जो आप पेशेंट को और उसके अटेंडेंट्स को बताओ, ताकि आपको भी पता हो और उनको भी पता हो कि ऑपरेशन थिएटर में ले जाके क्या करना है, या फिर जो भी फैसला या जो भी ट्रीटमेंट आपने उसके लिए डिसाइड किया है वो क्यों डिसाइड किया, कंसिडरिंग द स्टेजिंग ऑफ द पेशेंट। तो उस स्टेजिंग के अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होंगी तो आपकी स्टेजिंग होगी ना। तो आपने, क्योंकि एमआरआई आपको बताएगा लिम्फ नोड्स के बारे में एमआरआई आपको बताएगा अबाउट द मायोमेट्रियल इन्वेजन और वो सारा कुछ। तो इसलिए एमआरआई, तो आपने जब रिपोर्ट्स मांगी हैं तो फिर उसको लेने के बाद आफ्टर यू आर फिनिश्ड विद ऑल द रिपोर्ट्स, फिर आप उसको काउंसल करोगे। ऑफ कोर्स देखो, शी गॉट द बायोप्सी रिपोर्ट, यू डोंट नो इफ शी नोज अबाउट द बायोप्सी रिपोर्ट और नॉट, इवन इफ शी नोज यू शुड डिस्कस अ लिटिल विद हर कि कि ये कार्सिनोमा आ गया है, राइट। सो अब इसको लेकर आगे ये ट्रीटमेंट है, बिकॉज अब तक की क्लिनिकल स्टेजिंग ये जा रही है, और अब ये है। जब एक दफा न्यूज ब्रेक हो गई, उसके बाद आपने उसकी प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो पहले आपने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ देखना है कि आपकी कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस ठीक नहीं है। जैसे शानजे ने बड़ा अच्छा पिक किया, उसने उसने एचबी को देखा, उसने सी पॉजिटिव को साथ साथ लेके चला। किसी पेशेंट में यूटीआई होगा, वो आपने साथ साथ, सो एनी added investigation that needs to be treated. अब whenever you are deciding to transfuse blood, for example for the surgery, उसके अंदर आपने पहले तो ये बताना है कि इस पेशेंट के अंदर आपका टारगेट हीमोग्लोबिन फॉर दिस टाइप ऑफ सर्जरी क्या है, और उसमें आपने टारगेट एचबी किस तरीके से अचीव करोगे, और क्यों ब्लड लगा रहे हो, बिकॉज यू आर प्लानिंग सर्जरी अर्जेंटली। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट में बहुत अर्जेंसी नहीं है सर्जरी की, तो फिर आप आईवी भी दे सकते हो, बट हाउ एवर इसके अंदर अर्जेंसी है, तो इसकी आपने सर्जरी प्लान की है, एंड योर टारगेट हीमोग्लोबिन फॉर एग्जाम्पल, मुझे शांति की बातों से लगा कि 10 HP, यानी यू नो एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट यू आर गोइंग टू गिव टू हर, एग्जामिनर इज मोर इंटरेस्टेड टू नो दैट व्हाट target you want to reach. If her HP was 8, tell them that my target HP will be 10, right? And if your target HP is 10, तो उसके आगे फिर आप क्या करोगे? तो इसके अंदर भी आपने कहना है कि her HP is 9, I'm planning surgery for example tomorrow or day after tomorrow. So my target hemoglobin is 10. For that I want to transfuse 1 unit of blood, right? Or a packed site. अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो you will be extraordinary, right? मैं बता रही हूँ 70% की जब तैयारी करके जाना है, ब्लड शायद वहां हर कोई लगाएगा इसको, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वही है जो कि एक जेन्युइन और लॉजिकल तरीके से अपनी स्टेटमेंट बोलेगा कि क्योंकि मैंने परसों सर्जरी करनी। सो दिस इज कवरिंग एवरीथिंग दैट, इंस्टेड के एग्जामिनर आपसे बहस करे कि ब्लड ही क्यों लगाया, आपने कुछ और क्यों नहीं लगाया, एक क्यों लगाया, दो क्यों नहीं लगाया, एटसेट्रा, उसका आपने जवाब दे दिया हुआ कि बिकॉज आई एम प्लानिंग सर्जरी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, हर एचपी इज 9, आई वांट टू कीप इट एट 10, माय टारगेट हीमोग्लोबिन इज 10 बिफोर सर्जरी, सो आई विल ट्रांसफ्यूज हर 1 unit ऑफ पैक्सेल। ठीक है, एक चीज होगी। उसके बाद आपने करना है, क्या से कहते हैं, फिर हाउ मच मोर ब्लड यू वांट टू कीप फॉर द सर्जरी। आई एग्री विद शांजे, यस, यू विल कीप 2 units ऑफ ब्लड इन हैंड फॉर दिस टाइप ऑफ सर्जरी, ओके। तो वो आपने टू यूनिट्स रखे और वो आपने कर दिया। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली काउंसलिंग, और फिर अब प्रेपरेशन की जब बारी आई है तो वो सारा, बिकॉज आगे अब चांसेस से आगे बताओ जी। After तो taking the higher, मैडम स्टेज कौन सा है कैंसर का? वो भी देखते हैं ना, अभी बात करते हैं। मैम फिर इसको एमआरआई की स्टेज, चलो मैं रिपोर्ट दे देती हूँ। यस मैम एमआरआई आप, के अंदर एक्सक्यूज मी, लेस देन 50% इन्वेजन है मायोमेट्रियम में, आसान कर दिया मैंने। ओके मैम। मैम लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। हम मैम अच्छा, देन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, बड़ा अच्छा भी शायद सानिया ने किसने क्वेश्चन किया, स्टेज कौन सा दिस, अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर हैज नॉट गिवन यू टू द स्टेज एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड हर
कि टेल मी द रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस, एंड फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी नहीं दी थी, एंड यू यू हैव स्टार्टेड आपने एक दफा पूछ लिया, आपका पॉइंट स्कोर हो गए, कि आपने मांगा था, आपने कंप्लीट करने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेशंस की, आगे चलो। आपने जो है जब आप ट्रीट कर रहे हो तो आपने फिर अपनी खुद ही बना लेनी है स्टेज। आपने कह देना है कि एमआरआई की रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने दी, आप खुद ही बना लो कि इट इज लेस देन 50% इन्वेजन, और फिर आप वो करो, ठीक है, टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। वो कहते हैं ना कि अपना रास्ता खुद बनाते जाओ तो आसानी हो जाती है। इसी तरह कल को अगर सर्जरी हो गई और उसके बाद बायोप्सी की रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी, तो बायोप्सी के अंदर आपने खुद ही बना लेना है, या आप मतलब लो लो ग्रेड बना लेना है, या मतलब इसको सिंपलेस्ट करके, ताकि जल्दी ट्रीट होके पेशेंट घर जाए और कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाए। इंस्टेड कि आप वेट करो और एग्जामिनर आपसे कहे कि ये तो स्टेज 3 है और फिर रेडियोथेरेपी है, वो बात हो। तो इसलिए ठीक है। मैम आगे चले। हाँ जी, आगे। Ma'am, after taking the consent and counseling of the surgery and the risk related to the surgery, like the hemorrhage, multiple blood transfusion, injury to the abdominal viscera, and also the anesthesia related complication, if there is any complication, there is a need of the ICU admission. And after all the pre-operative measurement, I will check the surgical checklist and shift the patient to the operation theater. And after gowning and the draping, I will do the examination under anesthesia to check the size of the uterus, position of the uterus, and the adnexal pathology. I will do the staging laparotomy by the laparoscopic route. I will take the peritoneal wash. जी, आवाज आपकी कट रही है शान से। पेरिटोनियल वॉशिंग से आगे चलो, मैं उतनी देर बता देती हूँ तब जब तक शानजे का कनेक्शन होता है, ठीक। सो द थिंग इज कि शानजे वेंट वेल, बट एक चीज थोड़ी सी हेलो देखो, अब आप सर्जरी के लिए जा रहे हो जी। मैम, आवाज आ रही है? अब आ रही है, एक बात सुन लो। यहाँ तक आप बहुत अच्छा बता रहे थे, लेकिन इसमें भी अगेन मैं कुछ ऐड जरूर करूंगी, और वो ये मैं ऐड करूंगी कि जब आप सर्जरी के लिए पेशेंट को लेकर जा रहे हो, तो एक दफा फिर आप उससे डिस्कस तो कर लो कि इस वक्त जो टेंटेटिव स्टेज है फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, इट इज स्टेज 1, राइट? 1A, probably 1A1 और 1A2 होगी मैक्सिमम। तो उसके अंदर उसको ये भी बता दो कि दिस इज द स्टेज, और हाउएवर अंदर जाके ब्रॉस और सर्जिकल स्टेजिंग होगी, उसके बाद इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेजिंग भी होगी, राइट? सो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन से तो बता दो कि अर्लियर स्टेज है, लेकिन जब आप उसका और अगर इंट्रा ऑपरेटिवली भी फॉर एग्जांपल यही स्टेज आती है, तो यू कैन टेल के तो फिर कंप्लीट ट्रीटमेंट विल बी द क्लियर इन सर्जरी जो आप करने जा रहे हो, देन रेस्ट ऑफ द सर्जरी में नॉट बी नीडेड, ठीक है ना? तो रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में नॉट बी नीडेड, शी मे नॉट इवन नीड टू गो फॉर द रेडियोथेरेपी एंड एवरीथिंग। तो आपने तो ये सारी बातें प्री ऑपरेटिवली आपको पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर या क्लिनिकल स्टेजिंग है, वो इट्स एन अर्लियर स्टेज जिसके ऊपर ये ट्रीटमेंट बनती है, लेकिन सर्जिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेजिंग के बाद कंप्लीट इसका मैनेजमेंट डिसाइड होगी, ठीक है? उसके बाद आपने इसको थिएटर में लेके जाना है, और यू वर टेलिंग अस अबाउट द लैप्रोस्कोपिक रूट। जी बताएं। After peritoneal washings, do the to check the all the abdominal pelvic viscera, proceed to the total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, and the आप infracolicomactic. लैप्रोस्कोपिक रूट से गए हो ना, तो फिर Yes, टोटल ma'am. लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी बोलो ना। Total laparoscopic guided hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy, and हम्म। then I will do the proper pelvic lymph node sampling, and I will close the abdomen, and I will do the proper documentation of the all the procedure with date, time, and I will shift the patient to the recovery room, do the VT risk assessment, and debrief the patient regarding the follow-up, survival of the disease, prognosis, recurrence, and the radiotherapy, and the risk related to the ठीक है, radiotherapy एक मिनट, also. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गुड। मुझे बता, पेल्विक लिम्फ नोड सैम्पलिंग से क्या मतलब है आपका? मैम, ये वाली चीज मुझे नहीं समझ आती कि लेप्रोटमी के अंदर जो हम स्टेजिंग लेप्रोटमी हम कर रहे हैं उसके अंदर पेल्विक लिम्फ नोड सैंपलिंग है, लेकिन आपने आपने मुझे ये जो सिनेरियो दिया था उसके अंदर आपने मुझे लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन का नहीं बताया था। तो अब हमें लिम्फ मैंने नोड कहा नहीं है। सैंपलिंग करनी है या नहीं करनी है या नहीं करनी? देखो, सही बात बताऊं, सी एंडोमेट्रियम में तो लिम्फ नोड बायोप्सी खत्म ही हो चुकी हुई है, राइट?
मतलब वो कहते हैं कि आप अगर नहीं भी कर रहे हो और बाद में रेडियोथेरेपी कर रहे हो तो प्रोग्नोसिस इज ऑलमोस्ट द सेम, जितनी जो नई आ रही है स्टडीज। इफ आई एम रॉन्ग जस्ट लेट मी नो। हाउएवर मैंने तो आपको स्टेज ही अर्ली दिया, अर्ली में लिम्फ नोड देखो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मुझे ये बताओ कि लैप्रोस्कोपिक लिम्फ नोड्स, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूं कि लैप्रोस्कोपिक लिम्फ नोड डायसेक्शन कैसे की जाती है, फिर वो बताओ। मैम लेप्रोस्कोपिक आप अपने लिम्फ नोड पाँव पे खुद को लड़ा मार रहे हो। यस मैम। हम तो लेप्रोस्कोपिक रूट से भी गए हुए हैं ना। मैम असल हम्म में एक दफा मैंने सिर्फ एग्जामिनर को वाइवा में दे दी थी, जब मैंने आप सिर्फ उनको लेप्रोस्कोपिक बात स्टेजिंग, कर रहे हो ना। तो मैम मैंने उनको स्टेजिंग लेप्रोटमी में ना पेल्विक हम्म लिम्फ नोड सैंपलिंग का नहीं बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने पेल्विक लिम्फ नोड सैंपलिंग तो की नहीं। तो मैंने कहा ये तो अर्ली हम्म स्टेज थी ना, इसमें तो नीड ही नहीं थी करने की। तो मतलब उन्होंने इस चीज को माइंड किया कि लिम्फ नोड सैंपलिंग क्यों नहीं की, जबकि मैंने तो कभी करते हुए भी नहीं देखा कि लिम्फ नोड सैंपलिंग स्टेजिंग लेप्रोटमी में, हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं करता। देखो, लिम्फ नोड सैंपलिंग क्या, लिम्फेडिनेक्टमी एज वेल एज पैरायोटिक लिम्फेडिनेक्टमी, ये सब होता है। ओवेरियन सीए में यहाँ तक भी जाया जाता है। जो सीए एंडोमेट्रियम है ना, उसके अंदर लिम्फ नोड डाइसेक्शन या लिम्फेडिनेक्टमी का इतना रोल नहीं है। और लिम्फ नोड्स पे कौन कौन से निकाले जाते हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल, आइलियक और ऑब्चुरेटिव लिम्फ नोड्स, राइट। और लैप्रोस्कोपिक में कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। यू गो थ्रू द रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस, लैटरल पेल्विक वॉल के थ्रू आप जाते हो। पहले एक्सटर्नल आइलियक वेसल्स के साथ एक्सटर्नल आइलियक लिम्फ नोड ले लेते हो, फिर इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड दे देते हो। देन यू गो लिटिल डीप इनसाइड और फिर यू रीच द ऑब्चुरेटर फॉसा, और वहां से ऑब्चुरेटर लिम्फ नोड्स ले लेते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि ये अनहोनी बात है या हो नहीं सकता या वो सब। लैप्रोस्कोपिक ओपन में तो फिर बहुत बड़ा इंसिजन हो जाता है, राइट। और ओपन में बल्कि ज्यादा कह लो कि एग्रेसिव या ज्यादा खतरनाक और हाई मॉर्बिडिटी वाली सर्जरी होती है। इफ यू आर एक्सपर्ट इन लैप्रोस्कोपी, द लैप्रोस्कोपिक लिम्फ डिसेक्शन इज अ ब्यूटीफुल सर्जरी एक्चुअली। लेकिन सोच समझ के बोलो ना। दो चीजें ये कि अब आप लैप्रोस्कोपी को बार बार एब्डोमिनल से कंफ्यूज कर रहे हो। इफ यू टॉकिंग अबाउट द लैप्रोस्कोपिक रूट, देन टॉक एवरीथिंग अबाउट लैप्रोस्कोपी। इट्स अ ब्यूटीफुल, मैं तो बड़ी इंप्रेस हो गई कि आपने लैप्रोस्कोपी को ऑप्ट किया। लेकिन उसके अंदर फिर आप बोलो कि आप करोगे कैसे? सबसे पहले आपने पेरिटोनियल वॉशिंग ली, उसके बाद आपने सारे विसराज इंस्पेक्ट किए। ये मैं लेप्रोस्कोपी का आपको बता रही हूँ। लेप्रोस्कोपी में फायदा ये है कि उसे एक पोर्ट से, उसे कैमरा से ही हम लिवर भी देख लेते हैं, अंडर सर्फेस ऑफ डायफ्राम भी देख लेते हैं, ओमेंटम भी देख लेते हैं, हम पेल्विस भी सारा देख लेते हैं, पेल्विक पेरिटोनियल वॉशिंग भी ले लेते हैं। उसके बाद हमने उसकी टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, बायलैटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी करते हैं। यू डोंट नीड टू गो इन द लिम्फ नोड्स इन दिस टाइप ऑफ सीए। However, अगर दूसरा होता तो अच्छा, इसके अंदर फिर मल्टीपल, बिकॉज वी नो दैट इट्स अ केस ऑफ सी एंडोमेट्रियम, इट्स एडिनोकार्सिनोमा एंडोमेट्रियम, तो फिर आप इसमें मल्टीपल बायोप्सीज की बात कर सकते हो। मेंटल बायोप्सी ले लो। सी एंडोमेट्रियम के अंदर इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी कहीं का रोल नहीं है, राइट। सो एक तरह से डीबल्किंग एज वेल एज स्टेजिंग आप कह लो। ओके, सर्जरी हो जाएगी इसकी, और फिर आप उस अकॉर्डिंगली बात प्रोसीड, मतलब फिर देन वही पोस्ट ऑप और मैम वो सारा कुछ जो किया मैडम रहता बायोप्सी तो ले सकते हैं ना पेल्विक लिम्फ नोड की? है। बट व्हाई? इट्स नॉट रिकमेंडेड। MRI के अंदर भी लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन नहीं है, तो व्हाई आर यू गोइंग टू द मैडम रिट्रोपेरिटोनियल जैसे स्पेस टू रीच इसमें द। जो स्टेजिंग लेप्रोटमी के स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, उसमें लिखा होता है कि टेक रैंडम बायोप्सीज फ्रॉम मोमेंटम और सस्पिशियस एरियाज एंड लिम्फ नोड्स, पेल्विक लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स अगर आपको enlarged लग रहे हैं इंट्राऑपरेटिवली तो फिर आप ले लो। However, you don't need to go to the lymph nodes in every patient. ठीक लेकिन है। मैम इसे स्टेज तो 182 स्टेज है, तो इसमें तो लिम्फ नोड इन्वॉल्व ही नहीं है ना, नो फोकल इसमें है ही इन्फिल्ट्रेशन। नहीं इन्वॉल्व, इसमें है ही नहीं, तो MRI में भी नहीं है। बिकॉज जी मॉर्बिडिटी उसके अंदर है, और दूसरा ये कि एवरीवन इज नॉट एक्सपर्ट टू रीच द लिम्फ नोड्स। अगर आप हर एक में लिम्फ नोड्स की बात करो जिसमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिम्फ नोड्स भी ले लिया और वो लार्ज आ गए, तो भी तो ट्रीटमेंट बाद में चलो रेडियोथेरेपी वाली होगी, लेकिन उसमें फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेजिंग भी तो ज्यादा होगी ना पेशेंट की। लो ग्रेड सीए के अंदर लिम्फ नोड्स तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। वो फिर मॉडरेट या हाई ग्रेड भी होगा तो भी आप चलो, यू कैन कंसिडर रेडियोथेरेपी लेटर ऑन। लेकिन अगर वो वही बात अभी जो भी डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर मायोमेट्रियल इन्वेजन ही लेस देन 50% है और अर्लियर स्टेज है, तो और लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन ही नहीं है, बिकॉज ओपन सर्जरी के अंदर ये आप में से आई डोंट नो कितनों ने देखा है लिम्फेडिनेक्टमी होते हुए, लेकिन रीचिंग द लिम्फ नोड इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग।
मैम मैम वैसे नेक्स्ट भी क्वेश्चन। जो एस्टिक ट्रायल हुआ था ना, उसमें यही देखा गया कि रेडिएशन वर्सेस लिम्फ नोड डाइसेक्शन इन अर्ली स्टेज, तो उसमें उन्होंने बताया कि यस, नो रोल ऑफ लिम्फ नोड डाइसेक्शन इज, यानी इसका कोई बिल्कुल, रोल नहीं है। एग्जैक्टली exactly. और मैम जैसे अगर यूनिट में लेप्रोस्कोपी नहीं होती हो तो हम जो है एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी का ही कह जाहिर रहे है, हैं। वो तो शानजे ने बोला, आई एम श्योर उसके हॉस्पिटल में होती होगी जो उन्होंने, अदरवाइज लेप्रोस्कोपी इज डेफिनेटली बेटर, बट इफ यू डोंट हैव लेप्रोस्कोपिक फैसिलिटी तो फिर आप एब्डोमिनल रूट पे मैडम को सारा एक्सप्लेन मैलिग्नेंसी कर के अंदर दोगे। लेप्रोस्कोपी के लिए हिस्टेक्टोमी करना मुश्किल नहीं होता? वेरी ब्यूटीफुल। ऑन्कोलॉजी में लैप सर्जरी का इज फार बेटर देन ओपन सर्जरी, उसमें रिकवरी जल्दी होती है, ब्लड लॉस नहीं होता, टिश्यू हैंडलिंग बेहतर होती है, टिश्यू टेयरिंग नहीं होती। पेशेंट ने अगर लेटर ऑन रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की तरफ जाना है और उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है तो बहुत ज्यादा जल्दी जा सकता है। और स्पेशली ऑन्कोलॉजी के पेशेंट में, कैंसर वाले पेशेंट में वुंड हीलिंग बहुत डिलेड होती है। और अगर वुंड हीलिंग ना हो तो जितनी देर से 3 महीने लग जाए जख्म ठीक होने में, ओपन मिड लाइन इंसिजन इतना बड़ा मिला हुआ है, और 3 महीने लग जाए तो फिर वही फर्दर कीमो रेडियो डिले हो जाती है उस पेशेंट में। मैम अर्लियर स्टेज पे तो फेनेस्टील इंसिजन देंगे ना? हाँ, बैलेंस ही देंगे, फिर नहीं, मिड लाइन में नहीं जाना। ओके मैम। जो आप कर रहे हो अपने डिपार्टमेंट में यही कर रहे हो जो मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल वही करना है। जहाँ कुछ समझना है प्लीज। अब शानजे जो है वो, उसके डिपार्टमेंट में लिम्फ नोड्स वाली चीजें होती नहीं, लेकिन उसने बोल लिया तो वहीं फंस गई। ठीक है ना, वो बोलो जो हो रहा है डिपार्टमेंट में, वो ठीक हो रहा है। ये बात मेरी आपने याद रखनी है, ठीक है। सो गुड। और फिर पोस्ट ऑप में बड़ा अच्छा शानजे बता रही थी, वो बोल दो एक दफा शानजे। Ma'am, in post-op phase, I will do the proper documentation, debrief the patient again, do the VT risk assessment, check the vitals plus input and input-output charting, counsel the patient for the follow-up, survival of the disease, prognosis and the recurrence rate, and the radiotherapy and the risk related to the radio and the follow-up with the histopatho report. बिल्कुल ठीक है। और फिर उसमें बोलते जाओ, आपने चुप नहीं होना। अगर एग्जामिनर ने खुद नहीं कुछ आपसे पूछा, बोलते जाओ कि फॉलो अप में वो आई, Ma'am, उसका follow-up. स्टेज यही थी, और मैंने उसे बता दिया कि इसमें इतना सर्वाइवल रेट है, शी डजंट नीड टू कम बैक फॉर मोर फॉलो अप बिकॉज अर्लियर स्टेज थी एंड इट्स क्लियर्ड। एक चीज हम बीच में मिस की कर गए थे शुरू में, हमने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को हमेशा साथ में रखें तो बेहतर होता है। उसमें एनेस्थेटिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, सबको शामिल कर लें तो बेहतर रहता है हमेशा। ठीक है, Yes, ma'am. तो आपने, जब तक मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब मैम तक एग्जामिनर खुद रिकरेंस नहीं भी नहीं रोकेगा बताइए। आपने बोलते रहना है जी। रिकरेंस जो है वो भी बताओ। 7 to 18% रिकरेंस है ना इसकी मैडम? Ma'am, तो recurrence ठीक rate है, is ma'am, recurrence rate is most commonly in the vault, which is 7 to 15%, but it can be decreased by using the progestogens therapy or the radiotherapy. वो एडवांस स्टेज में होता है ना। Yes, मैम, वो तो एडवांस स्टेज में होगा मैम, अर्ली स्टेज तो में तो अर्ली में रिकरेंस तो नहीं मैडम, बात करने की जरूरत ही प्रोजेस्टेरॉन नहीं तो है। तब देते हैं जब पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, वैसे थोड़ी देते हैं। ठीक है। और वैसे भी द थिंग इज कि ये सब एडवांस स्टेज में, आज तो हमने वैसे ही बिल्कुल बेसिक वाली बात की ताकि एक चीज कवर हो जाए, तो उसके अंदर रिकरेंस की बात करने की जरूरत ही नहीं है अर्ली स्टेज में। अच्छा मैडम, इसके जो ग्रेड्स होते हैं मैडम, वो क्या इसकी हिस्टोपैथ रिपोर्ट पे लिखे हुए होते हैं या वो किस तरह होते से हैं, पता चलेंगे? हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट पे लिखा होता है, लो और ग्रेड, मैडम ये जो इसकी अभी मॉलिक्यूलर मॉडरेटली क्लासिफिकेशन आई है, डिफरेंशिएटेड जी। तो कुछ सॉरी, मेंटर्स कहती हैं कि मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन भी साथ आपने मांगनी है जब आप रिपोर्ट नहीं, मांगे। डोंट गो नहीं? फॉर दैट, वो ऑन्कोलॉजिस्ट का काम है, वो उसमें ना पढ़ो, वो हमें नहीं समझ आती, वो हमें नहीं पता, हमें रिसेप्टर्स का नहीं पता, हमें नहीं पता। जस्ट लेट द ऑन्कोलॉजिस्ट डू देयर जॉब, बट हम उसमें ना पढ़ो, मॉलिक्यूलर या रिसेप्टर सेंसिटिविटी अच्छा हमने उसको जो ट्रीट करना मैम, है बस। जैसे हमें एमआरआई मायोमेट्रियल इन्वेजन बता रहा है, तो हमें अल्ट्रासाउंड भी मायोमेट्रियल इन्वेजन बताएगा ना? बताएगा, बता सकता है बिल्कुल, अगर उसमें मेंशन किया हो। लेकिन उसके अंदर रेगुलरिटी और एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल एकोटेक्सचर उसमें लिखा होता है कि वो एकोटेक्सचर डिस्टर्ब्ड है,
और या डिमार्केशन नहीं है, और उसके साथ ब्लड सप्लाई, डॉपलर, एंडोमेट्रियम, आपने इसी तरह ही बोलना है अल्ट्रासाउंड मांगते हुए। मोस्टली और अल्ट्रासाउंड मैडम पे दूसरा सस्पिशन आ जाती है। एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल एको टेक्सचर खराब दिया होता है, तो उसमें पहले ही सस्पिशन आ जाती है इन्वेजन की। अच्छा अच्छा मैडम, ये जो स्टेज है 1A, इसमें भी तो 3 ग्रेड्स है ना, जैसे ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है। तो मैडम जो ग्रेड 1 था सिर्फ उसी में मतलब लेप्रोस्कोपिकली आप THBSO कर सकते हैं, बाकी में तो मैडम कर ही नहीं सकते, फिर तो लेप्रोटमी करेंगे ना। क्यों बाकियों में क्यों नहीं कर सकते? मैडम यही लिखा हुआ था इसमें गाइडलाइन में, अगर किसी ने। कौन सी गाइडलाइन? ऐसी बात नहीं है। आप लेप्रोस्कोपिक हर स्टेज में कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। मैडम इसमें लिखा हुआ था कि स्टेज 1A के जो ग्रेड 1 है उसमें लेप्रोस्कोपिक THBSO है, ग्रेड 2 और 3 में फिर TLH, लेप्रोटमी डोंट है से मैडम। TH। देखो जो TH BSO, आपकी टर्मिनोलॉजीज हैव टू बी वेरी करेक्ट। ये गायनी की टर्मिनोलॉजी से, अगर गायनोकोलॉजिस्ट ठीक नहीं बोलेंगे तो कोई और से आप क्या कहो। TH मैम इज टोटल एब्डोमिनल, TLH टोटल लैप्रोस्कोपिक, राइट? मैम जी जी वैसे मैडम, ये लेकिन ना मैडम वो सिर्फ ग्रेड गाइडलाइन ये 1 में कहाँ है, लिखा मैं हुआ है? ये ये कह रही कहीं नहीं लिखा हुआ सदफ, इसका प्रेफरेंस बताओ। हूँ। मैडम मेरे पास तो यही सब, मैंने ये वहीं से ही पढ़ा है मैडम, मेरे नोट्स बने हुए हैं तो कहाँ मैं से? उसी में देख। गाइडलाइन है ना मैम, गाइडलाइन में यही लिखा हुआ है कि स्टेज 1 में लेप्रोस्कोपी गाइडेड करेंगे, और उसके अंदर जो है ना मोर जी, अंदर जो और है वो भी ना मैडम सिर्फ ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में भी नहीं। ग्रेड 2 में ऐसा क्या स्टेप सर्जरी का हो रहा है जो ग्रेड 1 में नहीं हो रहा, ये बताओ। मैडम उसमें ना फिर वो ऐड कर देते हैं ये लोग ना, क्या नाम है, इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी। तो इंफ्राकॉलिकोमेंटेक्टमी इज डन लैप्रोस्कोपिकली। मैडम वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं तो बस ये गाइडलाइन का ही बता रही हूँ आप ये क्योंकि गाइडलाइन अभी। प्लीज शेयर कर दो। जी ठीक है योर मैडम। रिसोर्स हैज टू बी ऑथेंटिक। या बहुत बड़ी स्टेटमेंट अगर इस तरह जी की जी दे रहे मैडम, हो। मैंने वहीं से ही नोट्स बनाए हैं ये ना विच गाइडलाइन? टेल मी द नेम ऑफ द गाइडलाइन। मैडम यही जो इसकी थी ना, फिगो वाली जो एंडोमेट्रियम की है। नहीं, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना जो आपने पढ़ा, आप उसमें से स्क्रीनशॉट शेयर कर बिल्कुल। दें। और हमने तो मैडम नहीं बिकॉज पढ़ा। ये बिल्कुल ऐसे और किसी रिकमेंडेड ने नहीं नहीं पढ़ा है। है ये फिगो? कोई नहीं, बोल नहीं बिल्कुल पढ़ा भी या नहीं नहीं पढ़ा, पढ़ा उन्होंने सिर्फ सदफ, आप स्टेज 1 प्लीज, लिखा है, उन्होंने ग्रेड मेंशन नहीं किया उस पे। इस तरह नहीं होता बिल्कुल। और आई एम वेरी मच श्योर कि लैप्रोस्कोपिकली इवन अगर आप इंफ्राकॉलिकोमेंटेक्टमी से लेके आप उसकी लिम्फ नोड डायसेक्शन कंप्लीट कर सकते हो, आप उसका यू कैन डू, आप हर चीज कंप्लीटली कर सकते हो। सो देयर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। हाउएवर आप रूट ऑफर जरूर करो, बल्कि अब तो ऑन्कोलॉजी के अंदर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सुपीरियर टू द ओपन सर्जरी, 100% सुपीरियर, क्योंकि उसमें इन पेशेंट्स के अंदर इम्यूनिटी रिकवरी और रिपेयर ऑफ टिश्यूज बहुत डिलेड होते हैं, और लेप्रोस्कोपी इज वन मोडेलिटी जिसमें ये सारा कुछ बहुत अर्ली होता है। तो आप प्लीज खुद को बैकवर्ड जाने के बजाय दुनिया के साथ लेके चलो। सो ट्राई टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। सेकेंडली ये कि इफ यू हैव जेन्युइन रिसोर्स अवेलेबल, डू शेयर विद अस, बिकॉज उसके अगेंस्ट और बहुत सारे आर्टिकल्स और स्टडीज भी मिल जाएंगी जो कि उसको भी निगेट करेंगी, लेकिन पहले आप उस चीज के स्क्रीनशॉट शेयर करो, बिकॉज इट्स नॉट लाइक जी दैट। और इंफ्राकॉलिकोमेंटेक्टमी बहुत ब्यूटीफुली होती है लैप्रोस्कोपिकली, लिम्फ नोड कंप्लीट डायसेक्शन बहुत ब्यूटीफुली होती है, और पाकिस्तान में भी हो रही है। सो डोंट, इस तरह की बात नहीं है। तो आप दूसरी चीज ये कि यस पोस्ट ऑप है, जैसे शानज़ा ने हमें बड़ा अच्छा बताया, सारा उसकी वही रिकवरी, वही सारे स्टेप्स, और फिर काउंसलिंग, और बार बार मैं एक टिप जो बताती हूँ एग्जाम में, कि अगर ऑन्कोलॉजी का केस है एंड एग्जामिनर इज नॉट मेंशनिंग एनी स्टेज, या आपको बीच में नहीं रोकना तो रोक रहा, तो बोलते ही चले जाओ, और अर्लीस्ट या इजीएस्ट स्टेज बना के उसकी कंप्लीट थेरेपी और कंप्लीट ट्रीटमेंट करके तो पेशेंट को घर भेज दो। ठीक है, अगर वो बीच में रोके तो फिर तो जाहिर है फिर डिस्कशन आगे अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है, सो गुड। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम इंशाल्लाह बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे जी। मैम ये जो एब्डोमिनो पेल्विक हम अल्ट्रासाउंड मांगते हैं, तो फिर एब्डोमिनल का नहीं मांगे करें? ना मांगो, एब्डोमेन का मांगो ही ना, आप सिर्फ पेल्विस का मांगो। सीए आपको पता चल गया है, बायोप्सी पे आ गया, एमआरआई मांगो एब्डोमेन पेल्विस का। आप मैम अपने हॉस्पिटल में एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा के कितनों के एब्डोमिनल स्कैन भी कराते हो, या फिर आप अपने हॉस्पिटल में बिफोर गोइंग फॉर डीएनसी या आफ्टर यू गॉट द एंडोमेट्रियल बायोप्सी की रिपोर्ट विद द रिपोर्ट ऑफ सीए,
आप उसको एब्डोमिनल स्कैन के लिए तो नहीं भेजते ना, आप उसको एमआरआई के लिए भेजते हो। मैम मेरी एक फ्रेंड से क्वेश्चन किया था एग्जामिनर ने कि व्हाट आर द हम्म एडवांसेस इन मैनेजमेंट ऑफ सीए एंडोमेट्रियम, तो मेरे ख्याल में वो शायद हम्म, 2023 की लेटेस्ट गाइडलाइंस के बारे में पूछ रही थी, तो बहुत मैम कुछ। इसका जी, आंसर बता दें। देखो नहीं, इसका आंसर ऑब्वियसली मैं इसमें लेटेस्ट एडवांसेस अगर मैंने एग्जैक्टली पढ़ी हो, लेकिन व्हाट आई नो इज दैट कि इसके अंदर अब हार्मोन थेरेपी भी ऐड हो चुकी हुई है लेटर स्टेजेस में, स्टेज 3 एंड बियॉन्ड में। रिसेप्टर, अच्छा ये आई एम श्योर आपकी फ्रेंड का बड़ा अच्छा वाइवा जा रहा होगा कि बात यहाँ तक गई है। ये उन लोगों से सवाल किया जाता है जो बहुत बियॉन्ड या बहुत ब्रिलियंट बात जहां तक पहुंच चुकी हो। तो रीसेंट एडवांसेस इसके अंदर बिल्कुल हैं और काफी हैं। इसके अंदर हार्मोन थेरेपी भी है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपीज भी है। इसके अंदर स्टेज 3 एंड बियॉन्ड के अंदर, इसके अंदर आई डोंट नो, आप एक दफा देख लेना, कुछ टारगेटेड थेरेपीज भी हैं। वो इसके जी जी मैम, रिसेंट इम्यून चेक एडवांसेस है। पॉइंट इनहिबिटर्स हैं, जैसे एग्जैक्टली, पेम्बोलिजुमैब बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स के लिए सवाल किया गया था। थैंक यू मैम। ठीक है, सो वेलकम, सो गुड। चलो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मैम हम फॉलो अप किस तरह